Hello friends, myself Ajit Kumar Srivastava, Professor and Head, Department of Computer Science and Engineering, SysTech College, Ratibur Campus. In Department of Computer Science, in terms of infrastructure, we have got 9 computer labs equipped with latest configured computers and the expertise faculty members in different areas as per the requirement of the industry. We, in the Department of Computer Science and Engineering, focus more on to the practical training of an engineer, because what is the thought process of our institution is, without practical knowledge, you can't be an engineer. Therefore, looking into this concept, we emphasize more onto the practicals since the day students enters in the institution. Thereafter we carry the student in a step-by fashion so that he can learn various subjects of computer science and engineering as well as different programming languages step by step based on his own interest. A student can choose any one area as per his interest into the subject and can choose any of the learned programming language to excel himself. We, as the Department of Computer Science Engineer, focus onto the subjects which are actually required by the industry. Therefore, parallel to the course curriculum of university, we run our modules along with the subjects. For this, we have a concept of 4x4 model, where a single day consisting of 8 hours is divided into 2 parts, 4 hours and 4 hours. We call it as 4x4. For 4 hours, he learns the subject prescribed by the syllabus. And in the next 4 hours, the student is supposed to do the practicals as per the need of the curriculum, also as per the need of the industry. We, as in computer science engineers and mentors, finalize the subjects as per the requirement of industry by discussing with the technical peoples of industry, our technical training team, as well as training and placement team. They are in continuous touch with technical and HR people of various industries. This is our strength, where we focus onto the practical part as well onto the projects of the students, by which they learn how to work in an industry, in a computer industry, as well they learn the industrial ethics. Good evening, friends. Myself, Ajit Srivastava, Professor and Head, Department of Computer Science and Engineering. इस पेंडेमिक सिचुएशन में मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपके सभी प्रियजन स्वस्थ और हेल्दी रहें। आज के इस लाइव सेशन में मैं कुछ अपने डेली रूटीन के अनुभव शेयर करना चाहता हूं, जिससे कि हम ये जान सकें, जो हमारा उद्देश्य है बताने का,
कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग अ नीड ऑफ टुडेज वर्ल्ड क्यों है। जैसा कि एक किसी भी व्यक्ति का रूटीन होता है, उस रूटीन में मैं आज सुबह जब उठता तो आदत है मंदिर जाके दर्शन करने की। लेकिन सिचुएशन पेंडेमिक है, हम लॉकडाउन में हैं, हमें बाहर जाना नहीं है, तो मैंने अपने इष्ट देव के दर्शन किए ऑनलाइन। और जब मैं नाश्ता करने बैठा तो मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि इलेक्ट्रिसिटी बिल और टेलीफोन बिल बाकी है देना। तो मैंने वो बिल सबमिट किया और सबमिट करने के साथ मैं व्हाट्सएप मैसेजेस देख रहा था, तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस पढ़े मैंने, जहां पे उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि सर अभी प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज आने वाली हैं और हमें कुछ सब्जेक्ट्स में रिवीजन और चाहिए और कुछ डाउट क्लियरेंस चाहिए। तो मैंने उन सब्जेक्ट के टीचर्स के साथ एक छोटी सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और आपस में डिस्कस करके एक टाइम टेबल बनाया। उसमें से एक सब्जेक्ट मैंने अपने पास साथ रखा और क्या किया, अब बच्चे तो मेरे पास क्लास में है नहीं है, तो हम लोगों ने अपने घर से ही इस मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके उनकी क्लासेस ली। इस चीज से जब मैंने थोड़ा और सोच समझ के देखता हूं या समझता हूं, तो देखता हूं कि मेरे जीवन में कहीं ना कहीं कंप्यूटर साइंस इस तरह से घुल मिल गया है जैसे कि हमारे खाने में नमक होता है। अगर खाना हम नमक के बगैर खाएं तो कुछ अधूरापन लगता है। उसी तरह से हम गाए बगाए जाने अनजाने कंप्यूटर का उपयोग अपने दैनिक जीवन में डेली रूटीन में करते हैं, बट कई बार हम महसूस नहीं कर पाते कि हम कंप्यूटर का वाकई उपयोग कर रहे हैं क्या। जब हम सोचने बैठते हैं तब लगता है कि अरे वाह, हमने यहाँ पे भी कंप्यूटर का उपयोग किया है। इसी तरह की कुछ और चीजें मैं डिस्कस करता हूं। जैसे कि ये बात हुई कि मैंने छोटा सा एक मोबाइल डिवाइस या अपना लैपटॉप यूज किया, साथ साथ में हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी मशीन्स का उपयोग भी करते हैं जिनके उपयोग के बगैर हमारा जीवन शायद हम सार्थक ना समझे। तो कहीं ना कहीं जीवन में कंप्यूटर हमारे लिए इनएविटेबल हो चुका है। जैसे कि आज की अगर हम जरूरतों की बात करें, तो आज हमें कुछ पढ़ना है, इफ आई वांट टू रीड समथिंग, व्हाट आई डू, आई टेक माय मोबाइल, ओपन द गूगल एंड राइट समथिंग। मैं कुछ लिख देता हूं जो मुझे जानना है उसके बारे में, और गूगल मुझे बहुत सारी चीजें लिस्ट आउट करके दे देता है और मैं पढ़ने के लिए तैयार हूं। उसी तरह से अगर मेरे यहाँ स्टूडेंट्स हैं या मेरे अपने बच्चे हैं, वो अगर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, उसका डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हैं, या मैं भी अपने पूरे कार्य की अगर जानकारी कहीं रखना चाहता हूँ, तो मैं अपना काम कर सकता हूँ। मुझे बुक लिखनी है तो मैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग का काम कंप्यूटर के साथ में बहुत आसानी से कर सकता हूँ। अगर मुझे मेरे जो हमारा एक कम्युनिकेशन का तरीका था, जिसको हम पहले पत्राचार बोलते थे, कम्युनिकेशन थ्रू लेटर्स, हम एक लेटर लिख के भेजते थे और फिर इंतजार करते थे जवाब आने का। तो जवाब आने में जब लेटर हमको वापस मिल जाता था, तो उस पत्र से, उस लेटर से मैं पता पड़ता था कि जो पहले पत्र मैंने भेजा था, वो मैं उसमें जो मैसेज था वो जहां तक मुझे पहुंचाना था वो पहुंच गया। लेकिन आज के समय में कंप्यूटर का उपयोग करके हमने इस काम को सिर्फ एक बटन क्लिक पे सीमित कर दिया है। हम कुछ भी लिखें और एक बटन क्लिक करेंगे और कुछ सेकंड्स में वो मैसेज उस व्यक्ति तक पहुंच जाएगा जिसको हम मैसेज भेजना चाहते हैं। इसी तरह से आज हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं, तो चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो हमारी ऑनलाइन शॉपिंग हो, चाहे हमारी कोई सर्विस एजेंसी हो, सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी हो, हम तुरंत उनके वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन रिक्वेस्ट डालते हैं और हमारा काम हो जाता है और चीजें हमारे घर पे डिलीवर हो जाती हैं। इसी तरह से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करें, अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें कि अगर मेरी जरूरत किसी कलेक्ट्रेट ऑफिस में, तहसील ऑफिस में या नगर निगम ऑफिस में कोई मेरी कोई काम मेरा अटका हुआ है या मैं करवाना चाहता हूं, तो सभी ने अपने अपने लिंक शेयर किए हुए हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सब चीजें पारदर्शी लगभग होती जा रही हैं।
इस कंप्यूटर के उपयोग से। हम जस्ट उसको लॉग इन करते हैं, वहां अपनी बात रखते हैं। साथ में उन्होंने एक सिटीजन चार्टर भी दिया हुआ है, उसके द्वारा हम ये भी देख सकते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो कहां तक पहुंची है, किस किस अफसर ने उस पर क्या लिखा है, क्या एक्शन लिया है, हम ये देख सकते हैं। हमारा जुडिशियल सिस्टम है, पहले हमें वकील के दरवाजे पे बार बार जाके पूछना होता था, भाई हमारा अब केस की डेट कब आने वाली है। अब हमें जरूरत नहीं है, ऑनलाइन हमको सारे अपने डेट्स मिलते हैं कि अब हमारी डेट कब है, या अगर किसी वजह से मिस हुई है तो आगे आने वाली डेट हमारी कितने महीने या किस एक साल में आने वाली है या उसके बाद आने वाली है। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम आज कंप्यूटर के कारण कर पा रहे हैं। इसका मतलब कंप्यूटर ने कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमें ऐसे टूल्स प्रोवाइड किए हैं जिनसे हम अपनी जीवन शैली को, अपने जीने के ढंग को हमने सुदृढ़ किया है। इसके अलावा हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में कंप्यूटर ने मदद भी दी है। मदद किस तरह से दी है, मैं दो उदाहरणों के उस रूप में रखूंगा, विद द टू एग्जांपल्स। वन इज, अगर हम बात करें, इट हैज scattered द पर्सन्स दोज हु आर ओवरलुक्ड यूजुअली, जिनको हम ओवरलुक करते रहे, उन लोगों को इस कंप्यूटर साइंस ने कैटर किया है। अब ओवरलुक किया तो किनको किया, उसमें उदाहरण है कि अगर कोई मिट्टी के खिलौने वाला है जो बनाता है मिट्टी के खिलौने और उसे सजावट के रूप में हम अपने घरों में रखते हैं। दूसरा बुनकर है, बुनकर मेहनत बहुत करता है और उसका जो माल है वो काफी कॉस्टली बिकता है। तो कॉस्टली खरीदने वाला भी हर कोई नहीं है, तो बुनकर अपने ग्राहक तक और ग्राहक उस बुनकर तक पहुंच पाए, ऐसी सुविधा इस कंप्यूटर्स के कारण हो पाई, या हो सकी है। साथ साथ में कंप्यूटर ने वो पाथ भी निश्चित किया है जहां पे हम वर्ल्ड में इक्वालिटी गेन कर सकते हैं या कर पाते हैं। अब इक्वालिटी की अगर हम बात करेंगे तो इक्वालिटी किन टर्म्स में, फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, वो सॉफ्टवेयर बनाने के बाद अगर वो किसी की जरूरत को पूरा करता है तो वो जरूरत वाला व्यक्ति जो जरूरतमंद है उसको ये देखने की जरूरत नहीं है कि मैं मेल हूं कि मैं फीमेल हूं, मैं पैसे वाला हूं या पैसे वाला नहीं हूं, या मैं इस कास्ट को बिलोंग करता हूं या नहीं करता हूं। तो कहीं ना कहीं हम अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो वो ये सारे डिफरेंसेस हमारे बीच में खत्म करता है। ये सोसाइटी के लिए एक अलग क्या कहना चाहिए, वरदान है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हेल्थ केयर सेक्टर में कंप्यूटर साइंस ने बहुत मदद की है, जहां हम आज टेलीमेडिसिन की बात करते हैं, और साथ में कंप्यूटर्स के कारण हेल्थ केयर सर्विसेज को वर्ल्ड वाइडली एक्सेसिबल भी बनाया। साथ में इट हैज हेल्प्ड अस इन प्रिवेंटिंग एंड अवॉइडिंग कैटास्ट्रॉफ। कैटास्ट्रॉफ मतलब हम प्राकृतिक आपदाओं की बात करें तो प्राकृतिक आपदाओं को प्रेडिक्ट करना मतलब अनुमान लगाना कि इस तरह की कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली है, इसका अनुमान लगाना, इसका अनुमान लगाना कि वो कितनी सीवियर होगी, उसके इफेक्ट कहां कहां कितने होंगे, और यहां के बाद वो अगर तूफान है तो मूव होके किधर किधर जाने की कंडीशन में रहेगा तो हम वहां भी अलर्ट भेजें। तो ये जो सारी चीजें हैं ये हमारे कंप्यूटर्स की द्वारा ही हो पाई हैं। इसके साथ साथ मैं देख रहा हूं कि कुछ क्वेश्चंस भी आ गए हैं, तो आई थिंक आई शुड टेक द क्वेश्चंस वन वन बाय वन। मैं देख रहा हूं एक क्वेश्चन है, एज कंप्यूटर इंडस्ट्री इज डायनामिक इन नेचर, हाउ your institute handle this dynamism? Very nice. In this I would like to reply you that we कीप ऑन चेंजिंग आवर मॉड्यूल्स। मैंने आपको बताया कि हम लोग अपने इंस्टीट्यूट में जो पढ़ाई है वो 4x4 मॉडल के तरीके से करते हैं। 4x4 मॉडल का मकसद है कि हम अपने विश्वविद्यालय, अपनी यूनिवर्सिटी के प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस के साथ साथ जो इंडस्ट्री रिक्वायर्ड
सब्जेक्ट्स हैं या प्रैक्टिकल्स हैं वो हम बच्चों को कराएं, जिसके कारण हमारे स्टूडेंट्स इंडस्ट्री रेडी बन सके। तो 4x4 मॉडल में हम ये करते हैं कि 4 घंटे कंपल्सरीली बच्चा यूनिवर्सिटी के करिकुलम को पढ़ता है। इसके अलावा वो बचे 4 घंटे यूनिवर्सिटी करिकुलम या उसके अलावा जो इंडस्ट्री रिक्वायर्ड करिकुलम है उसके प्रैक्टिकल्स के को परफॉर्म, और ये जो प्रैक्टिकल्स इनकॉर्पोरेट करते हैं जो इंडस्ट्री के रिक्वायर्ड है के तहत करते हैं, उसका एक को हम डिसाइड करने के पहले हमारी जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट की टीम और हमारे टेक्निकल ट्रेनर्स, टेक्निकल एक्सपर्ट्स और एचआर एक्सपर्ट्स के साथ मिलके इस साल का रोड मैप इन स्टूडेंट्स के लिए क्या रखना है। हमें 4 साल के बाद आने वाले समय में जब ये बच्चे हमारे ग्रेजुएट इंजीनियर होते होंगे और उस समय इंडस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट हो वो हम आज से तैयार करते हैं। इसके साथ साथ ये एम्प्लॉयबल बन पाए, इसके लिए चूंकि इंडस्ट्री में आज कंपटीशन बहुत है, तो करने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट कंपलसरी है, साथ में कम्युनिकेशन स्किल्स का पार्ट जरूरी है, इंडस्ट्री के एथिक्स जरूरी है। इन सब के लिए पैरेलली कॉलेज के समय में ही हम इनको एप्टीट्यूड ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन स्किल ट्रेनिंग, इनकी ग्रूमिंग की ट्रेनिंग हम साथ साथ में देते हैं। इसके साथ में हम इनको इंडस्ट्रियल विजिट भी कराते हैं। इंडस्ट्रियल विजिट कराने का मकसद होता है कि ये इंडस्ट्री में जाके देखें कि इंडस्ट्री काम कैसे करती है, इंडस्ट्री के उसके अपने एथिक्स क्या है, ये बच्चे को जानना जरूरी है। ये प्रोफेशनल कोर्स है और यही सारी चीजें हैं जो हमारे यहाँ डायनामिज्म इंप्लीमेंट करवाती है और हमारे बच्चे उसको अडॉप्ट करते हैं। इसके साथ साथ हम बच्चों को नेशनल लेवल पे भी कॉम्पिटिशंस में भेजने के लिए प्रेरित करते हैं। वी मोटिवेट देम एंड द स्टूडेंट्स गोस इन डिफरेंट इवेंट्स। दे आर आइदर मे बी दे आर ऑर्गेनाइज्ड बाय AICTE यूनिवर्सिटी और एनी अदर यूनिवर्सिटीज और IITs। और खुशी की बात यह है कि वहां से प्राइजेस लेके आते हैं। जब प्राइज लेके वहां से आते हैं तब इनका एक अपने आप में जो जज्बा या मोरल इनका बूस्ट होता है वो इनको और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आई थिंक आई कैटर्ड दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई कंप्यूटर साइंस ब्रांच इज डिफरेंट फ्रॉम कोर ब्रांचेस। बिल्कुल ये डिफरेंट है क्योंकि कोर ब्रांचेस का नाम कोर क्यों रखा है, क्योंकि वो स्तंभ है, आधार स्तंभ है, दे आर द पिलर्स, बेसिस। और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो है दैट इज एन एप्लीकेशन। और अगर हम इसको मैथमेटिक्स के टर्म्स में समझें, दोनों भाषाओं को उपयोग करूंगा, हिंदी इंग्लिश, कि हम सेट थ्योरी पढ़ते हैं, समुच्चय। तो समुच्चय में एक समुच्चय होता है जिसको हम बोलते हैं अधिसमुच्चय, इंग्लिश में बोलते हैं सुपरसेट। तो सुपरसेट क्या करता है, आधार स्तंभ तैयार हो गए हैं, आधार स्तंभ के बाद आधार स्तंभ ने अपना काम कर लिया, अब बचा हुआ काम किसने करना है, उसको प्रेजेंटेशन में। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस क्या करता है, बाकी सारी ब्रांचेस, आप कोई भी ब्रांच ले लीजिए जिसमें आज ऑटोमेशन हो गया है। क्यों ऑटोमेशन जरूरी है? ऑटोमेशन इसलिए जरूरी है कि आपने कार बना ली, आपने उसकी स्पीड निर्धारित कर ली, आपने उसकी पावर निर्धारित कर ली, आपने उसका एवरेज निर्धारित कर लिया। अब इसके ऊपर लग्जरी। अब लग्जरी में भी क्या, तो लग्जरी देने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगते हैं और वो इक्विपमेंट के साथ में उनकी प्रोग्रामिंग लगती है। तो उसी तरह से चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री हो, चाहे वो सिविल इंडस्ट्री हो, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांचेस हो, कोई भी हो, सभी जगह जब ऑटोमेशन की बात आती है तो कंप्यूटर साइंस की बात आती है। इसलिए कंप्यूटर साइंस जो है उस इंजीनियरिंग में एप्लीकेशंस को ढूंढ के उनमें और क्षमताएं बढ़ाने का काम करवाता है। इसलिए कंप्यूटर साइंस ब्रांच इज मोर इंपॉर्टेंट। दूसरा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा
फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी सिविल की चर्चा की, एक डैम बनाया हमने, डैम में डैम वॉल होती है जहां से हम पानी रोकते हैं, और जब पानी ज्यादा होता है तो हम गेट खोल के पानी को फ्लो आउट करते हैं, जिससे हमारा डैम सेफ रहे। इनकमिंग पानी जो हमारा कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से ज्यादा होता है तो हम बाहर निकालते हैं। लेकिन पानी भरने के बाद डैम में जो वॉल बनी है, उस वॉल को नीचे कोई देखने जाता है कि उसमें क्रैक आ गए हैं या उसमें सीलन आ रही है, डैम्पिंग हो रही है? नहीं। तो वो देखने का क्या तरीका है? उसका तरीका ये है कि आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे सेंसर्स आ गए हैं जो आपके मोर्टार मोर्टार मतलब जो आपका रेत सीमेंट का मिक्सचर होता है, उसके साथ में आप उन सेंसर्स को डाल देते हैं और दीवार बना देते हैं डैम वॉल की, और बाहर बैठ के उनको आप कंप्यूटर से कंट्रोल करते हैं, और वो आपको वहां से डेटा भेजते रहते हैं कि यहाँ पे डैम्पिंग हो रही है नहीं हो रही है, वहां पे क्रैक्स आने के क्या चांसेस हैं कि नहीं है। इससे हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं, हम डैम को सेफ रख सकते हैं, समय पे जो भी रिक्वायर्ड जाने के या डैम के डाउन स्ट्रीम में रह रहे लोगों के, वो हम ले सकते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन भी मैंने एड्रेस किया है। शायद आपको लगे, नहीं लगता है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं प्लीज। कैन आई गेट job in small cities after completing my BTech degree? Ankit, yes, you can. You can. Reason behind is, see, actually, everywhere the industries are also looking onto the area which is convenient for them as well as for their employees. ये कुछ प्रोजेक्ट्स पे भी डिपेंड करता है। दूसरा, छोटे शहरों में लैंड आसानी से मिलता है, और छोटे शहरों को आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट भी प्रयासरत रहती है। तो आप देखेंगे कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर, इन इन शहरों में भी गवर्नमेंट ने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स का आइडेंटिफिकेशन किया है। भोपाल और इंदौर में तो बना दिए हैं, और कंपनीज आ भी गई हैं और ऑपरेशन शुरू कर दिए कंपनीज ने। तो डेफिनेटली आज की अगर हम पेंडेमिक सिचुएशन अगर देखते हैं, तो इस सिचुएशन में हम अगर देखें तो काम करने वाला व्यक्ति भी चाहता है कि वो अपने घर के आसपास रह के ही काम करे, बहुत दूर ना जाना पड़े, कि कभी कोई ऐसी कोई विषम परिस्थिति या और सिचुएशंस होती हैं तो वी शुड बी वेरी नियर टू अवर नियर एंड डियर वंस। रोहिताश जी पूछ रहे हैं, हाउ सिस्टेक सीएसई डिपार्टमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर कॉलेजेस? ओके, मैं आपको इसका आंसर देना ऐसे चाहता हूं कि हम अपने डिपार्टमेंट में, एक तो जो मैंने आपको बताया कि हम मॉड्यूल्स पे ध्यान देते हैं जहां इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट को कैटर करते हैं हम लोग। इसके साथ साथ हम बच्चों को या स्टूडेंट्स को बहुत सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रखते हैं। वो एक्टिविटीज उनके करियर के लिए हैं, जैसे कि हमारे यहाँ टेक्निकल हब है, टेक्निकल हॉबी क्लब है, हमारे यहाँ परफॉर्मिंग आर्ट हॉबी क्लब है, हमारे यहाँ लिटररी क्लब है, हमारे यहाँ स्पोर्ट्स क्लब है, जहां पर स्टूडेंट्स अपनी अपनी क्षमताओं, अपनी अपनी कैपेबिलिटीज, अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना एरिया चूज करके आगे बढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर टेक्निकल क्लब की मैं बात करता हूं तो हमारे यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के साथ आईओटी क्लब चलता है, जहां पे स्टूडेंट्स बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करने के लिए उनको दिए जाते हैं, स्टूडेंट्स करते हैं। साथ साथ में इन प्रोजेक्ट्स को लेके वो पार्टिसिपेशन भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जो हमारा सेंट्रल का ह्यूमन एंड रिसोर्स मिनिस्ट्री कंडक्ट करता है थ्रू एआईसीटी, उसमें हमारे यहाँ के बच्चे बहुत ईगरली पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत जेन्युइनली पार्टिसिपेट करते हैं। दिन रात बैठ के कॉलेज में वो अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं, ये बच्चे अपने इंटरेस्ट को देखते हुए और साथ में ये भी देख पाते हैं कि वो अपने इंटरेस्ट एरिया में इस कंप्यूटर का उपयोग कैसे कर पाएंगे
और जब बच्चे उसको करते हैं तो उनको वो भी समझ में आता है कि हम अपनी सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को अगर सॉल्व करना है तो हम कंप्यूटर का उपयोग कैसे कर पाएंगे. दिस इज हाउ द कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट इज डिफरेंट देन अदर्स. ओके, एरिया, धीरज सिंह पूछ रहे हैं एरियाज वेयर कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स आर रिक्वायर्ड. ओके, धीरज जी, आई विल answer your question in the way you just think of and you find no area where you can't apply computer science and engineering. ये एक बहुत ब्रॉड आंसर हो गया. अभी हम इसको कैटेगराइज कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल डिफेंस है, तो डिफेंस में कंप्यूटर का बहुत अपना उपयोग है आज की तारीख में. क्यों? क्योंकि हमारा डिफेंस भी बहुत ऑटोमाइज हो गया है. आज अगर हम बात करते हैं कंट्रोलिंग ऑफ इक्विपमेंट ऑफ फायरिंग ऑफ बॉम्ब्स, इवन अकेला फायरिंग ऑफ बॉम्ब्स ही नहीं है, जो पायलट हमारा फाइटर पायलट हमारा प्लेन फाइटर प्लेन चला रहा है उसकी सेफ्टी मेजर्स भी ऑटोमाइज्ड है. ये आपने देखा होगा बालाकोट वाले केस में कि कर्नल ने अपने आप को इजैकुलेट किया था. तो वो इजैकुलेशन आजकल बहुत मतलब कैलकुलेटिव हो गए ये सब चीजें. इसके साथ साथ हम गाइडेड मिसाइल्स की बात करते हैं तो ये गाइडेंस कैसे होता है, सब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो इसके पीछे काम करते हैं, रियल टाइम सॉफ्टवेयर हैं जो काम करते हैं. जहां पे मिसाइल एक बार अगर दाग दी जाए तो वो फायर्ड मिसाइल अपना ट्रैजेक्टरी टारगेट के अकॉर्डिंगली चेंज कर सकती है ना. पहले जमाने में कहते थे शब्द भेदी बाण, अगर शब्द आया है कहीं से उस डायरेक्शन में बाण चलाया है तो वो उसको लगेगा. तो वो मिसाइल आज की तारीख में अगर उसका हम कंपैरिजन करें तो हमारी सेल्फ गाइडेड मिसाइल है. इसी के साथ साथ हम पेट्रोलिंग में भी बात कर सकते हैं कि एनिमी इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे हमारे कितनी दूर है, क्योंकि स्लग एरिया या मार्श लैंड में हमारे यहाँ के जो जवान है उन्हें बड़ी दिक्कत होती है. वहां पे हमारा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बहुत मदद करता है इनको. साथ में एजुकेशन की अगर बात करें लर्निंग में तो ऑडियो वीडियो लाइब्रेरी जो पार्ट है, हम ऑनलाइन की बात करते हैं तो ऑनलाइन भी हम क्लासेस लेते हैं. तो ये सब हमारा कंप्यूटर और इस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के कारण ही पॉसिबल हो सका है. साथ साथ में एंटरटेनमेंट की अगर हम बात करते हैं तो किसी समय में जब कोई ऐसे सीन होते थे जहां पर कलाकार की जान को खतरा होता था, वहां पे डुप्लीकेट्स काम करते थे. क्यों? क्योंकि डुप्लीकेट्स वो बेरोजगारी का एक पार्ट था और डुप्लीकेट्स इसका फायदा मिलता था उनको कि उनको रोजगार भी मिल जाता था और अपनी लाइफ रिस्क पे वो काम करते थे. लेकिन जो बड़े कलाकार होते थे वो अपनी लाइफ को रिस्क में नहीं डालते थे. लेकिन आज किसी की लाइफ को रिस्क नहीं है, क्योंकि एनिमेशन इंडस्ट्री कंप्यूटर के कारण इतनी फास्ट ग्रोइंग हुई है कि कहीं अब किसी के जान को खतरा नहीं है. और जो इस तरह के स्टंट्स होते हैं वो कंप्यूटर के द्वारा किए जाते हैं और कंप्यूटर के एनिमेशन के द्वारा किए जाते हैं और वो मूवीज में एड अप होते हैं. साथ साथ में अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर हो, ट्रैफिक हो, ट्रांसपोर्टेशन पब्लिक प्राइवेट हो, आपका जुडिशियल सिस्टम हो, हेल्थ हो, इन सभी में आप देखेंगे कि कंप्यूटर का उपयोग हो गया है. अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है. अब तो एफआईआर की भी अगर हम बात करें तो एफआईआर भी लॉग जो होती है आपकी लॉज जो होती है ऑनलाइन होती है. इसी तरह से एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट में जो इंडस्ट्रीज वायुयान या हवाई जहाज को ऑपरेट करती है उसमें एयर कंट्रोल की हम बात करें तो ये 3 तरह के कंट्रोल होते हैं, लोकल कंट्रोल, ग्राउंड कंट्रोल एंड फ्लाइट डेटा कंट्रोल. तो ये सारी चीजें ऑटोमाइज है कंप्यूटर के कारण है. ऑटोमेशन की बात करें तो होम ऑटोमेशन, ऑफिस ऑटोमेशन, इंडस्ट्री ऑटोमेशन कंप्यूटर्स के कारण है. हेल्थ सेक्टर में पेशेंट डायग्नोसिस है, टेलीमेडिसिन है, कंप्यूटर असिस्टेड सर्जरी है, मेडिकल इमेजिंग है, ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ कंप्यूटर्स एंड कम्युनिकेशन. तो ऐसे बहुत सारे और भी सेक्टर्स हैं. रेलवेज की बात करें, फार्मास्यूटिकल्स की बात करें, जहां पे हम डिजाइन की बात करें, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, मैकेनिकल हो, जहां हम बहुत सारा पेपर शीट को वेस्ट करते थे, पेंसिल इरेजर्स को यूज करते थे. आज कंप्यूटर के साथ में हम उस ड्राइंग को बनाते हैं, जल्दी बना लेते हैं और चाहने को जब चाहे जितना चाहे उतना रब कर लेते हैं. हमारा ना पेपर वेस्ट होता है, तो कहीं ना पेपर वेस्ट नहीं हो रहा है तो हमारे कहीं ना कहीं हम जंगलों को भी बचा रहे हैं, है ना. आई थिंक आई आंसर्ड दिस. डू computer science students have equal opportunity in government sector? Yes, of course. You can see
all the industries which are enlisted in different cadres, अगर हम बात करें गवर्नमेंट, अगर पर्टिकुलर सेक्टर की हम बात करेंगे, तो चाहे वो सेंटर ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग हो, जिसको हम सीडैक के नाम से बोलते हैं, भारत में पहला सुपर कंप्यूटर सीडैक ने ही परम के नाम से बनाया था, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, कोल इंडिया लिमिटेड हो, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ जिसको हम बोलते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, या साइबर क्राइम डिपार्टमेंट है, बैंकिंग और बैंकिंग है, इन सब में भी कंप्यूटर साइंस की एक अपनी बहुत अच्छी भूमिका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब साइबर क्राइम वगैरह जैसी चीजें होती हैं, क्राइम को ट्रेस करना होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम होता है, वहां पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स बहुत काम आते हैं। फिर साथ में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो, सारे स्पेस शटल ऑटोमाइज्ड है ना, और इनका कंट्रोल हम सैटेलाइट के थ्रू ग्राउंड स्टेशन से करते ही है। तो ये सारी चीजें, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो, ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड हो, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड हो, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो, ये सारे के सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कंप्यूटर्स वालों को बहुत सारी ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। आकाश पूछ रहे हैं, योर कॉलेज लेवल ट्रेनिंग इज इनफ फॉर गेटिंग जॉब और आई हैव टू अटेंड सम कोचिंग आफ्टर कॉलेज टाइम? आकाश, नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं जाने की जरूरत है। जब आप हमको पढ़ने पढ़ाने के लिए पैसा दे रहे हैं, तो आपको सक्षम बनाना काम हमारा है ना। और जब आप 8 घंटे का समय संस्था को दे रहे हैं, वो मैं समझता हूं कि प्लान के हिसाब से, जिस हिसाब से हम अपने रोड मैप्स प्लान करते हैं, वो काफी सफिशिएंट है। क्योंकि रोजमर्रा के साथ साथ में हम डेली रूटीन में आपको 4 घंटे प्रैक्टिकल तो एम्फसाइज करते ही हैं और आपको करना ही होते हैं। इसके साथ साथ हम सिस्टम ब्रेक ट्रेनिंग भी एम्फसाइज करते हैं, जहां पे अगर कहीं कोई चीज रहती है या लैक होती है किसी कारण से, आप और हम मिलके उसको कोप अप कर पाए। और चूंकि आपको अपने रूम पे जाके, अपने घर जाके भी चीजों को खुद से सेल्फ लर्निंग जरूरी है, और इसलिए हम बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते, और जरूरी बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि हमारे यहाँ के जो बच्चों के प्लेसमेंट हैं वो बाहर से नहीं है, हमारे यहाँ ही लर्न करके, हमारे यहाँ ही सीख के बच्चों ने नौकरियां पाई है ना। वरुण शाक्या पूछ रहे हैं, as you told that you plan training modules to bridge the gap, what training modules are you running at present? Okay, हमारे यहाँ अभी हम करीब करीब 7-8 मॉड्यूल्स हैं जो चला रहे हैं। मैं आपको नाम बताता हूँ। हार्डवेयर ट्रेनिंग है, जहां पे आप कंप्यूटर असेंबलिंग, कंप्यूटर कम्युनिकेशन सीखते हैं। साथ में प्रोग्रामिंग यूजिंग सी एंड सी प्लस प्लस है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा है, वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर डिजाइन यूजिंग जावा है, डेटाबेस सिस्टम डेवलपमेंट यूजिंग MySQL and MS SQL at the back end, and all the latest tools, as we can talk about JavaScript and Python for the front end, programming with Python, data structure using Python, and database programming using Python, as well as machine learning using Python. तो ये हमारे बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल्स हैं जो हमारे हम रन करते हैं, और बच्चे के अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बच्चा उन मॉड्यूल्स को ऑप्ट करता है। शारुनी देशमुख लिख रही हैं, आई एम हिंदी मीडियम स्टूडेंट, कैन आई डू बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। देखिए, इंजीनियरिंग जो है वो एक टेक्निकल विंग है, जहां आपके थॉट्स आपको एक्सप्रेस करने आने चाहिए। भाषा का कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं है, लेकिन इंग्लिश जो है वो वर्ल्डली एक्सेप्टेड कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, तो इंजीनियर को आना, वो भाषा आना जरूरी है। उसके लिए सारी व्यवस्था हम संस्था में रखे हैं। हमारे पास रेनाउंड ट्रेनर्स हैं जो आपको, मेंटर्स हैं जो आपको सिंस
फ्रॉम योर फर्स्ट डे ऑफ योर इंजीनियरिंग आपको इसके लिए तैयार करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि आप विद इन अ मंथ अपने अंदर जो चेंज देखेंगे और महसूस करेंगे, दैट इज गोइंग टू गिव यू द आंसर in totality for this question. अर्पित विश्वकर्मा जी पूछ रहे हैं, सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड आईटी? देखिए, आईटी वर्ड जो है वो यूजुअली सर्विस सेक्टर के लिए यूज होता है। अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे तो कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर एक एप्लीकेशन है, एक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, और एक आपने सर्विस सेक्टर का नाम ले लिया आईटी। तो सर्विस सेक्टर जो है वो आईटी सेक्टर यूजुअली कहलाता है, जहां पे बने हुए सॉफ्टवेयर्स जो है और वो किसी कंपनी में अगर यूज हो रहे हैं तो जिसने बनाए हैं वो कुछ अपने एक्सपर्ट्स को वहां डिप्यूट करते हैं, सो दैट कि इन ड्यू कोर्स व्हेन दे आर इन यूज, अगर कोई इश्यूज आते हैं, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स आते हैं या यूजर कुछ चेंजेस डिमांड करता है, तो वो चेंजेस अगर बहुत मिनिमल है तो वो आईटी इंजीनियर्स वहां कर ले। अगर कुछ मेजर इशू है तो वो अपनी डेवलपमेंट टीम को कम्युनिकेट कर पाए। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जो है इसको हम कोर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग भी कह सकते हैं, जहां हम सिस्टम डेवलपमेंट एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करते हैं। How many companies visited to your institute? So overall this year, 173 companies, core companies visited, and out in those, 840 students have been placed till date. I think Sanjana Rajput पूछ रही है, what types of job opportunities are available in computer science and engineering? Okay, I will list, Sanjana, I will list few because there are many more and difficult to say and utter all the designations. We can divide it into two areas. One is hardware engineer, another is software engineer. Because in computer science and engineering, you learn all these things so you can opt as per your interest as to be a hardware engineer. In hardware engineer, you can design and develop the computing components to create faster, better and powerful computing systems, as well as you can go into the area of computer networking. Talking about the software engineer, you can be, I will start with, you can be web developer, you can be web software developer, you can be hardware engineer, you can be software testing engineer, you can be database analyst, you can be system analyst, you can be data warehouse developer, you can be data warehouse analyst, you can be information security analyst, you can be data security analyst, you can be project manager, you can be application developer, maybe a desktop application or maybe a mobile application. You can be into the quality assurance as a quality assurance associate. You can work as a database manager. You can be as user interface designer. You can be as software quality assurance and software quality testing. You can be data architect manager or data warehouse manager. So there are n number of different posts where you can give your services as per your interest. So I think I hope I addressed to the maximum of questions, and I request you all
इफ यू हैव मोर क्वेरीज, आपको और भी कुछ जानना है तो आप क्वेश्चंस पोस्ट करते रहिए, मैं आपको आंसर्स दूंगा जरूर, क्योंकि समय की एक लिमिटेशन है. सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. थैंक यू.